اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آئیے رمضان کے مبارک مہینے میں پیغام رمضان کا ہمارا روزانہ کا سلسلہ شروع تھا، اور جمعرات کو جو لائیو بیان ہمارا 4 سال سے ہوتا ہے، الحمدللہ حالات کو دیکھتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان میں وہ سلسلہ بند تھا۔ آئیے اب آئندہ کل یعنی جمعرات کے دن سے وہ سلسلہ پھر شروع ہو رہا ہے، اور آئندہ کل رات 9 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوگا، جس کا بڑا اہم عنوان ہے، ابھی وقت کے تقاضے کے تحت عنوان ہے کہ بچاؤ اس دیش کو، اس پیارے دیش کو، اس پیارے ملک کو ہمیں کیسے بچانا ہے، اور اسلام، قرآن، حدیث، نبی کی تعلیمات ہمیں کیا سکھاتی ہے، اپنے اس دیش کو کیسے بچایا جائے، ظلم سے، آتنکواد سے، موب لنچنگ سے، نفرتوں سے، دنگے سے، فساد سے کیسے بچایا جائے۔ انشاءاللہ آئندہ کل رات 9 بجے اسی چینل پر وائرل نیوز لائیو پر رات 9 بجے بہت ہی اہم بیان ہوگا، اپنی پوری فیملی کے ساتھ دیکھیں، اور اس بیان کو دیکھنے کی اپنے دوستوں کو بھی دعوت دے۔ آئندہ کل یعنی 18 اپریل کو رات 9 بجے وائرل نیوز لائیو پر بیان ہوگا لائیو۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی اچھی خوش کر دینے والی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ الحمدللہ یو پی ایس سی کے امتحان میں 52 مسلم بچے کامیاب ہوئے ہیں۔ راجدھانی لکھنؤ کے آدتیہ شریواستو پورے ملک میں اول پوزیشن پر آئے ہیں، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ جس کو ملک کے اندھ بھکت، گوبر بھکت بدنام کرتے ہیں، اس جامعہ ملیہ اسلامیہ کی نوشین اور روحانی ٹاپ 10 میں شامل ہوئے ہیں۔ یونین پبلک سروس کمیشن یعنی یو پی ایس سی نے منگل کو سول سروس ایگزامینیشن 2023 کا رزلٹ جاری کر دیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 1016 امیدوار آئی اے ایس، آئی پی ایس اور انڈین فارن سروس آئی ایف ایس کے لیے چنے گئے ہیں، جس میں سے 180 آئی اے ایس اور 200 آئی پی ایس افسر بنیں گے۔ لکھنؤ کے آدتیہ شریواستو نے یو پی ایس سی میں ٹاپ کیا، اور اس سال جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی کے
31 उम्मीदवारों ने यूपीएससी इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। उनमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नौशीन भी शामिल है, जिन्हें 9वां मकाम मुल्क भर में हासिल हुआ है। नौशीन ने कहा कि डीयू और जामिया के तालीमी कल्चर ने मुझे सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात में शिरकत के लिए मुतासिर किया। नौशीन के वालिद प्रसार भारती में डायरेक्टर है और वालिदा घरेलू खातून हैं। खैर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के इन तमाम कामयाब तलबा और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की पूरी मैनेजमेंट को हम दिल के गहराइयों से मुबारकबादियां पेश करते हैं। नाज़रीन, दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर मुंबई शहर से आ रही है। हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब अंसारी ने बताया कि जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी शहर के मारूफ आलिम दीन हजरत मौलाना जाकिर कासमी का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना जाकिर कासमी के जुलूस जनाजा में हजारों लोगों ने, सोगवारों ने शिरकत की और देवनार कब्रिस्तान में उनकी तदफीन अमल में आई। मैं आपको बता दूं कि हजरत मरहूम लंबे अरसे से मदरसा तालीमुल कुरान मस्जिद की ना मार्केट गोवंडी में निजामत, इमामत और जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। हज़ारों तलबा उनसे फैज़ याब होकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दीनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जो उनके लिए बेहतरीन सदक़े जारिया है। इस मौके पर महाराष्ट्र के सदर मौलाना महमूद मदनी ग्रुप के मौलाना हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब ने गहरे रंज गम का इजहार करते हुए कहा कि हजरत मौलाना का इंतकाल जमीयत के लिए भी और बाकायदा मुल्क व मिल्लत के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। और हाफिज साहब ने यह भी कहा कि हजरत मरहूम का खास तौर से फिदाए मिल्लत, जानशीन फिदाए मिल्लत हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद से खुसूसी ताल्लुक था और उन्होंने मिल्लत इस्लामिया के लिए बेशुमार खिदमात अंजाम दी है। अल्लाह उन्हें इसका बेहतर बदला नसीब फरमाए, आमीन। उत्तर प्रदेश पुलिस की घटिया हरकतों की खबरें अक्सर सामने आती रहती है। इस वक्त फिर एक बड़ी खबर आ रही है कि यूपी पुलिस के आतंक, हैवानियत, बर्बरता और दरिंदगी का शिकार एक मुस्लिम युवक, एक मुस्लिम जवान फिर हुआ। अच्छा, कमाल की बात है, मुस्लिम जवान ही यूपी पुलिस की दरिंदगी का शिकार होते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में नफरतें कितनी कूट कूट कर भरी हुई है एक खास समाज के खिलाफ। फैज नामी मुस्लिम युवक की अगवा करके पिटाई, मामूली तनाजे में बंधक बनाकर बाल भी काट दिया। आखिर FIR दर्ज कर ली गई है, 2 एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सहाफी सदफ आफरीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर अखबार का तराशा और एक शख्स की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि पुलिस की हैवानियत देखिए। ये फैज जो लखनऊ कैंट में रहता है, फैज देर रात खाना खाने गया था। फैज की मेरठ के 2 पुलिस एहलकार से मामूली बात हो गई, फिर दोनों पुलिस एहलकारों ने फैज का अगवा, किडनैप करके PAC ले गए और बंधक बनाकर खूब मारा पीटा। पुलिस वालों ने फैज के बाल भी काट दिए और छत से नीचे फेंकने की धमकी भी दी। खैर, इन दोनों पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, एक बाबा जो शलवार पहनकर भागा था अपनी जान बचाने के लिए, औरतों का लिबास पहनकर, उस बाबा का नाम है बाबा रामदेव। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी नौटंकी पर इसे बड़ी फटकार लगाई, क्योंकि ये बाबा अपना माल झूठे झूठे विज्ञापन देकर आयुर्वेद को, यानी अपनी दवाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता था और एलोपैथी को नीचे गिराने की कोशिश करता था। और इसके ऊपर, सर के ऊपर किसका हाथ है आपको मालूम है, क्योंकि 2013-14 में इस बाबा ने सत्ताधारी पार्टी के लिए बहुत काम किया था और जब उस पार्टी की हुकूमत बन गई तो ये बाबा समझता था कि अब्बा जी की हुकूमत है, कुछ भी करो। तो इस बाबा ने आतंक मचा कर रखा था और खूब अपनी दवाओं का प्रचार करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाता था। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और अब माफी अवामी तौर पर, पब्लिकली तौर पर माफी मांगने के लिए बाबा रामदेव तैयार हो गया है। पतंजलि गुमराहकुन इश्तिहार मामले में सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का वक्त बाबा रामदेव को और उसके चेले बालाकृष्ण को मिला है। आइए, बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आ रही है।
बैलेट पेपर पर इलेक्शन को लेकर आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ तकरीबन जनता है और जनता का ये कहना है कि जब तक कि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रहेगी बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वोटिंग मशीन की सेटिंग बड़े जबरदस्त अंदाज में की गई है। अब वोटिंग मशीन के खिलाफ लोगों ने धरना भी निकाला और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की थी, मगर अभी खबरें आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बैलेट पेपर पर वापस आने के बहुत से नुकसान है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पर बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह तबसरा किया। मैं आपको बता दूं कि 18 अप्रैल को इस मामले में फिर समाअत होने वाली है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आमतौर पर इंसानी मुदाखलत की वजह से मसाइल पैदा होते हैं। मसाइल उस वक्त पैदा होते हैं जब इंसानी मुदाखलत होती है या जब वो सॉफ्टवेयर या मशीन में गैर मजाज तब्दीलियां करते हैं। अगर आपके पास इसको रोकने के लिए कोई तजवीज़ है तो आप हमें दे सकते हैं। खैर, इंतखाबात में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के इस्तेमाल को लेकर जारी बहस के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैलेट पेपर पर वापस आने के बहुत से नुकसान है और जनता ये चाह रही है कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ इलेक्शन हो, क्योंकि ईवीएम पर से जनता का भी भरोसा उठ चुका है। क्योंकि लोगों ने अक्सर ये देखा है कि दबा रहे हैं हाथी निकल रहा है कमल, दबा रहे हैं पंजा निकल रहा है कमल, दबा रहे हैं साइकिल का बटन निकल रहा है कमल। तो इस तरीके से बीजेपी ने जो सेटिंग की है इसको लेकर लोगों में बेचैनी है। अगले दिन बड़ी खबर आ रही, जी हाँ, मैंने कहा था ना गुज़िश्ता कल भी कि बीजेपी की हालत हर जगह खराब हो गई है, लेकिन हमारे मुल्क की रखेल मीडिया बीजेपी के गुणगान में लगी हुई है, क्योंकि आका ने इतना पैसा दिया है कि आका की रात दिन तारीफ में लगे हुए और झूठी खबरें और झूठे इश्तिहारात और झूठी बीजेपी की वाहवाही में हमारे मुल्क के रखेल चैनल लगे हुए। लेकिन खबरें बता रही है कि बीजेपी का ग्राउंड पर बड़ा बुरा हाल है। अभी राजस्थान से भी खबर आ रही, मैंने इससे पहले आपको महाराष्ट्र के अमरावती के नवनीत राणा की वीडियो बताया कि किस तरीके से लोग नवनीत राणा के प्रचार की गाड़ियों को भी गलियों में घुसते नहीं दे रहे हैं बीजेपी की गाड़ियों को। और अभी राजस्थान से खबर आ रही है कि गुज़िश्ता कल राजस्थान का एक प्रोग्राम था बीजेपी का, जिसमें भीड़ नहीं होने की वजह से मंत्री जी नाराज होकर स्टेज से ही उतर गए और एक जगह तो मुख्यमंत्री जी लोगों को भगवान का वास्ता और भगवान की दुआई देकर रोकते हुए नजर आ रहे हैं। यानी बीजेपी के पास अब लोग भी जलसों में शरीक नहीं हो रहे हैं। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। अगला दिन बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने दिल्ली से आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल बाकायदा जमीयत उलमा के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ मदारिस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद समेत 50 से ज़ायद मदारिस के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। दीनी मदारिस के खिलाफ सरकारी इदारों के जो इक़दामात दुश्मनी और इनाद पर मबनी हैं, इसको देखते हुए जमीयत के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ मदारिस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसकी सदारत मौलाना महमूद मदनी साहब ने फरमाई। कॉन्फ्रेंस में दारुल देवबंद, दारुल वक्फ देवबंद, मज़ाहिर उलूम समेत उत्तर प्रदेश अशरफुल मदारिस हरदोई के सभी अहम इदारों के मुहतमिम और जिम्मेदारान हज़रात शरीक हुए। अपने सदारती खिताब में मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि दीनी मदारिस का किरदार और उनकी अहमियत रोज़ रोशन की तरह आया है। आज बर्र सगीर में जो मसाजिद आबाद हैं और दीनी तशख़्ख़ुसा जिंदा है, उनके पीछे मदारिस की मेहनत कार फरमाएं। दरहकीकत हमारे अकाबिर की दूररस क़यादत ने मदारिस का जो मुस्तहकम निज़ाम कायम किया था, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। ऐसी अजीम नेमत के तहफ़्फ़ुज़ की, हिफाजत की हर मुमकिन कोशिश और तदाबीर इख्तियार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मौलाना मदनी ने कहा कि आज मुख्तलिफ सतहों पर जिस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, खास तौर से इसके इजाले के लिए हमें तवील मुद्दती पॉलिसी बनानी होगी और इसके और ठोस और मुस्तहकम इक़दामात करने होंगे। मौलाना मदनी ने कहा कि हमारे इदारों को बंद करने और उसकी नौयत को तब्दील करने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है, मगर हम ऐसा कोई भी हुकूमती निज़ाम कबूल नहीं करेंगे।
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के वज़ीर आला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ने जेल से जज्बाती अंदाज में पैगाम भेजा और कहा कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है, मैं दहशतगर्द नहीं हूं। संजय सिंह जो 6 महीने जेल में रहकर आए आम आदमी पार्टी के कदावर नेता है, उन्होंने कहा कि वजीर आला केजरीवाल के साथ जेल में दहशत गर्दों के जैसा सलूक किया जा रहा है। वजीर आजम अपनी बदनीयती में मोदी इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि केजरीवाल के खानदान और बच्चों से मुलाकात शीशे की दीवार से कराई जा रही है। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब के वजीर आला भगवंत मान को Z+ सिक्योरिटी हासिल है, मगर जब वो केजरीवाल से मिले तो उनके दरमियान शीशे की दीवार थी। बीजेपी ने इस कार्रवाई से साफ कर दिया है कि उन्हें केजरीवाल से नफरत है। आम आदमी पार्टी के लीडर ने कहा कि केजरीवाल को 24 घंटे CCTV कैमरे की निगरानी में रखा जा रहा है, उन पर तशद्दुद करने का मंसूबा है, उनके हौसले पस्त करने की कोशिश की जा रही है और उनके खानदान को जलील किया जा रहा है। जबकि केजरीवाल मुख्तलिफ मिट्टी से बने हुए हैं, उन्होंने IRS सर्विस छोड़ दी है, तोड़ने की कोशिशों में वो मजीद मजबूत होंगे। आया दिन बड़ी अजीब खबर आ रही है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से कि ग्वालियर में 2 बहुओं ने मुबैना तौर पर अपनी सास का पीट कर कत्ल कर दिया, जबकि इस दौरान उनके शौहरों ने यानी बेटों ने खड़े होकर खुशी का इजहार करते हुए वो नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी मां बेदर्दी से पत्थरों और लाठियों से पीटी जा रही थी। बहुओं के हाथों सास का पीट कर बेईमाना कत्ल, बेदर्दी का कत्ल, ये वीडियो भी वायरल हो गया और दोनों बेशरम बेटे खड़े होकर हंसते रहे। वाकई का वीडियो वायरल हो गया है, कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तानी हसीना सीमा हैदर, जिसकी लव स्टोरी से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में काफी तहलका मचा और उसे खूब शोहरत मिली। सुर्खियां बटोरने वाली और PUBG खेलते खेलते पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान आकर सचिन से शादी करने वाली सीमा हैदर की मुश्किलात बढ़ने लगी है। बताया जा रहा है कि सचिन से शादी करने वाले पंडित को अदालत ने नोटिस दे दिया है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक सीमा के पाकिस्तानी शौहर गुलाम हैदर ने अदालत में दरखास्त दायर करके सीमा की शादी को चैलेंज किया था, जिस पर अदालत ने सीमा और सचिन के वकील AP सिंह, शादी कराने वाले पंडित और सीमा सचिन की शादी के बारातियों को नोटिस भेजा है। मामले की अगली समाअत 27 मई को होगी। साथ ही सीमा के पाकिस्तानी शौहर गुलाम हैदर ने सीमा के साथ हिंदुस्तान आए उसके छोटे छोटे नाबालिग बच्चों के मजहब की तब्दीली पर भी सवालात उठाए हैं। फैमिली कोर्ट ने सीमा, सचिन, AP सिंह पंडित और शादी के बारातियों को 25 मई को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा है।